discuss a very important topic, alcoholic liver disease. We will talk a little bit about alcohol also, which I think is very fantastic substance. Here you must be able to appreciate few guys chilling out with hard drinks. What is alcohol? It is ethanol. You might be also knowing about methanol. Sometimes due to manufacturing defect or any other cause, ethanol can get mixed with methanol and it leads to methanol poisoning. That is known as poisonous alcohol or illicit liquor. The most important thing in understanding of alcoholic liver disease is 1 unit of alcohol. What is 1 unit equivalent to? It is equivalent to 10 gram of alcohol. And we also need to know about safety limits. It is different for males and females. There is natural bias, can't do anything about it. Males can tolerate up to 21 units per week. Okay, what about females? Amount is lesser, up to 14 units per week. Natural bias, but why so? Right? फीमेल जल्दी हाई भी हो जाती है. तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने कह दिया मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सेफ्टी लिमिट क्यों है? फीमेल्स हैव लेसर बॉडी सरफेस एरिया. तो अगर दोनों लोग इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेंगे तो कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा? फीमेल में. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेसर एरिया, सो कंसंट्रेशन will be higher and toxicity will also be high. So alcoholic liver disease, if amount of alcohol intake is same, females will be more prone to develop. Here we have different brands and different alcoholic beverages with different percentage of alcohol. First one, 40%, right? These are hard drinks. Here you might be able to appreciate people like to booze and cut loose. Again, what is this? Ice on the rocks. 40% alcoholic drinks are known as hard drinks. Right? Can you tell me few examples? Examples are whiskey prepared in Scotland, you popularly call it Scotch, gin, rum, vodka, and most important of them is the tequila sort. What else? Here you have wine. Wine contains lesser amount of alcohol, and then you have few soft drinks. Most important of them, you have beer with 4 to 5% of alcohol. Here you also need to know about serogenic dose. Again there is natural bias. Males can develop cirrhosis over a period of time if they take alcohol above safety threshold for long period of time. For male, it is greater than 40 gram per day to be taken over long time, that is up to 15 to 20 years. What about females? Only greater than 20 gram of alcohol per day can induce alcoholic liver disease. I am talking about cirrhosis over a period of 15 to 20 years. But this is not absolute thing. Few people can tolerate more of alcohol without developing any symptom, any alcoholic liver disease. We will discuss this point later. अब हम लोग ना यूनिट में अल्कोहल लेते हैं ना ग्राम में लेते हैं. हम लोग कैसे लेते हैं? बैग्स में लेते हैं, क्वार्टर ले लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो मैं तो लेता नहीं वैसे. तो 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल क्या है? कितने के इक्विवेलेंट है? चलो 10 ग्राम हो गया, लेकिन 10 ग्राम कितने ड्रिंक पीने पे मिलेगा? इट इज इक्विवेलेंट टू 30 ml ऑफ विस्की. विस्की में 40% था, 100 ml ऑफ वाइन एंड 250 ml ऑफ बियर. अब रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट लोगों में अलग होंगे, मेल फीमेल में अलग होगा, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग लिवर कंडीशन है तो उसमें भी अल्कोहलिक लिवर डिसीज होने के चांसेस ज्यादा है. फर्स्ट पॉइंट डिपेंड्स ऑन अल्कोहल इंटेक. नो अल्कोहल इंटेक, नो अल्कोहलिक लिवर डिसीज. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहलिक लिवर डिसीज एंड सीरोजेनिक डोज फॉर मेल is greater than 40 gram per day. For females it is greater than 20 gram per day if they are being taken for long period of time, approximately 15 to 20 years. Drinking habit, कुछ लोग सुबह उठ के ही पी लेते हैं, कुछ लोगों में साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है. तो जो लोग रेगुलर पीते हैं उनमें चांसेस ज्यादा है, राइट? जो लोग ओकेजनल ड्रिंकर्स होते हैं उनमें चांसेस कम है. तो रेगुलर वर्सेस स्पोरेडिक. जेंडर बायस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप, लेकिन ज्यादातर अल्कोहलिक लिवर डिसीज मेल में होता है. प्रोबेबली मेल ज्यादा पीते हैं, लेकिन आजकल कुछ सिनेरियो चेंज हो रहा है. जेनेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू जीन पॉलीमॉर्फिज्म, स्पेशली in relation to
aldehyde dehydrogenase enzyme, which detoxify aldehyde into what? Into acid. Which aldehyde? Acetaldehyde into acetic acid. We will learn all these things in metabolism of alcohol. Nutritional status, any comorbidity, any pre-existing liver disease can make a alcoholic person more prone of developing any of the alcoholic liver disease spectrum, say it fatty liver, alcoholic hepatitis, alcoholic cirrhosis, or even hepatocellular cancer. Suppose someone is suffering from malnutrition, that guy will already be suffering from what? Fatty liver. Say someone is very obese, he or she might be suffering from non-alcoholic fatty liver disease. So if this person starts drinking, right, this alcoholic steatohepatitis will increase further. This person is more likely to develop alcoholic hepatitis and alcoholic cirrhosis sooner than other people. So these are various. ये तो है ही, कभी पानी के साथ पियो, कभी सोडा के साथ, और कभी नीट मान ली, क्यों कर ली? Risk factors. We also need to know about metabolism of alcohol. Most important thing to learn over here, ethanol gets converted into acetaldehyde. Acetaldehyde. Acetaldehyde is center of attraction. This is the toxic product responsible for alcoholic liver disease. Right? If you forget, aldehyde equivalent to alcoholic liver disease, this is the most toxic substance, and this further metabolized to acetate, which is not as toxic as aldehyde. There are two enzymes involved. Here you have alcohol dehydrogenase and here you have aldehyde dehydrogenase. aldehyde dehydrogenase हम लोगों ने अभी देखा जीन पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, तो डिफरेंट एफिशिएंसी के aldehyde dehydrogenase डिफरेंट लोगों में होंगे. तो ये अगर तेजी से मेटाबोलाइज कर देगा एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट में, ऐसे लोगों में अल्कोहलिक लिवर डिसीज के होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है. तुम लोग देखते होंगे कुछ लोगों को जल्दी चढ़ जाती है, राइट? कुछ लोग नीट पी लेते हैं तब भी नहीं चलते, कुछ लोगों को ज्यादा हैंगओवर रहता है, कुछ लोगों को ज्यादा बैंगओवर, नॉट बैंगओवर एग्जैक्टली. तो डिफरेंट लोग डिफरेंट क्वांटिटी को टॉलरेट करते हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से प्रोन होते हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज से. ये डिपेंड करता है कि उनमें एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज कितना फंक्शनल है. ड्यू टू जीन पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट लोगों में डिफरेंट एफिशिएंसी के एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज होंगे. अगेन एसिटाल्डिहाइड इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. टॉक्सिसिटी की मेन जड़ एसिटाल्डिहाइड है. एसिटाल्डिहाइड ज्यादा होगा तो ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा NADH प्रोड्यूस होगा. NADH अगर ज्यादा होगा तो रेड्यूस ग्लूटाथियोन कम होगा, राइट? इसका मतलब लीवर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए ज्यादा प्रोन होगा. ओके, these things along with generation of few inflammatory mediators, that is TNF alpha, right, will over period of time damage your liver. First of all there will be fatty accumulation in your liver, then over period of time patient might develop, if he starts binge drinking also, into alcoholic hepatitis, and slowly he might also develop cirrhosis. First of all it will be micronodular, then it can turn into macronodular, and then later on decompensated cirrhosis or acute on chronic liver failure, and finally death or liver cancer if not managed well. Okay, see, this is again your acetaldehyde, the toxic product, and the main enzyme detoxifying it, that is aldehyde dehydrogenase. So this shows gene polymorphism. जैसे पुअर क्वालिटी की एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज होगा उनमें जल्दी चढ़ जाएगी, ज्यादा चांसेस भी है किस चीज में कन्वर्ट होने के, अल्कोहलिक लिवर डिसीज, ज्यादा जल्दी भंड हो जाते हैं ऐसे लोग. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ कंट्री साइड लिकर है, कुछ आपका इलिसिट लिकर है, कुछ मेथनॉल. तो कभी कभी अगर सस्ती दारू देसी दारू पियोगे तो हो सकता है यू कैन एनकाउंटर मेथनॉल along with ethanol. So if you find more of methanol or due to manufacturing defect, if ethanol, I mean alcohol contains methanol, this is more toxic, right? This can kill you overnight. Okay, methanol ultimately converts into formic acid, which is very toxic substance. So this converts into formaldehyde and then formic acid. Formic acid can cause hell of symptoms, right?
and it is very difficult to manage, and right, it can take you to heaven. Ethanol can take you high, can make you high, right? Whereas methanol can take you higher, right, to heaven or to hell, depends on your activities. So here methanol gets converted into what? Formaldehyde by alcohol dehydrogenase, and then aldehyde dehydrogenase converts into formic acid. This is the toxic product over here. So if you happen to treat a patient of methanol poisoning, you need to inhibit this enzyme, alcohol dehydrogenase. So you can use fomepizole, you can use ethanol also. So जो एक इंसान ने गलत दारू पी ली है, उसको असली दारू पिलाओगे, ठीक हो जाएगा. ओके. What about this fomepizole? This is again alcohol dehydrogenase inhibitor. तो ये रिएक्शन नहीं होगा. Suppose someone has accumulated lot of formate, that is formic acid. You can also hasten its detoxification in form of CO2 and water by giving folate, right? So here you can treat this condition by ethanol or fomepizole. These are antidotes of methanol poisoning. You have to give either of them. ये सब forensic medicine में पढ़ोगे, along with folate, right? तो ये क्या करेंगे? ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे. तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कितना एथेनॉल देना है अगर कोई मेथनॉल पॉइजनिंग के साथ पेशेंट आए. यहाँ इसके साथ चिल करके चीयर्स नहीं कर सकते. एक मेथनॉल पॉइजनिंग का पेशेंट काफी सिक होता है, राइट? तो इसको या तो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से दे सकते हो या तो आईवी एथेनॉल दे सकते हो, इंजेक्शन एथेनॉल. ओके, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग. सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, कैसे डिसीज प्रोग्रेस करेगा? यहाँ पे हमारे पास क्या है? नॉर्मल लिवर है, फिर स्टेटोसिस होगा, इट मींस फैटी एक्यूमुलेशन, दैट इज फैटी लिवर. उसके बाद अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे, राइट, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा? फाइब्रोसिस डेवलप होगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस फाइब्रोसिस कैन लीड टू सिरोसिस. यहां तक मैं कहूंगा एल्कोहलिक हेपेटाइटिस तक. एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कैन बी फेटल आल्सो. यहां तक चीजें रिवर्सिबल है. बट जब एक बार सिरोसिस हो गया, राइट, या हेपेटोसेलुलर कैंसर हो गया या डीकंपेंसेशन हो गया, सिरोसिस का मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह हो गया, अब चीजें इरिवर्सिबल हो जाएंगी. इरिवर्सिबल. तो इसका मतलब अगर आपको ट्रीट करना है तो बेटर है इन दोनों लेवल्स पे आप इंटरवीन करो. ठीक है, कुछ हम लोग स्कोरिंग्स भी देखेंगे, राइट, कि कैसे सीवियरिटी और प्रोग्नोसिस को बताएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड नॉर्मल लिवर चेंजिंग इनटू फैटी लिवर. तो क्या होगा? हेपेटोमेगाली होगा. उसके बाद अगर पेशेंट और ज्यादा ड्रिंक करता जाता है, ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, धीरे धीरे क्या होगा? स्टीलेट सेल्स एक्टिव हो जाएंगे ड्यू टू टीएनएफ अल्फा, एंड दे विल स्टार्ट टू डेवलप फाइब्रोसिस इन लिवर. एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम माइक्रो नोड्यूल्स बनेंगे, फिर मैक्रो नोड्यूल्स बनेंगे, फिर और सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे. सो यू नीड टू नो अबाउट फैटी लिवर. देन alcoholic hepatitis, better known as steatohepatitis, then cirrhosis and then hepatocellular carcinoma. यहाँ तक रिवर्सिबल है. उसके बाद चीजें क्या हो गई? आपकी इरिवर्सिबल हो गई हैं. तो हमें देखना पड़ेगा आगे चल के कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज भी दे सकते हैं इन्हें. अगेन देयर आर सीरीज ऑफ चेंजेस. हेल्दी लिवर, देन फैटी लिवर, देन ड्यू टू फाइब्रोसिस patient will land up into alcoholic cirrhosis, then decompensated cirrhosis, and then acute on chronic liver failure or hepatocellular carcinoma. Anything can happen, but there is one more stage, alcoholic hepatitis. Suppose एक इंसान पीता था रोज 50 ग्राम, बीच में उसको ज्यादा नशा करने की आदत हो गई, राइट, बिंज ड्रिंकिंग करने लगा, फ्री अल्कोहल मिलने लगी, पार्टी मैन बन गया वो, राइट, हैप्पी आवर्स में जाने लगा, एक ड्रिंक के साथ एक ड्रिंक फ्री मिलने लगी, ज्यादा बूज करने लगेगा. तो ऐसा नहीं है कि उसको सिरोसिस ही होगा. अल्कोहलिक लिवर डिसीज में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जान भी ले सकती है, राइट. एनीथिंग इन एक्सेस इज टॉक्सिक. तो यहाँ तो अल्कोहल ले रहे हो, तो अगर ये सोच रहे हो कि आज अल्कोहल ले रहे हैं 20 इयर्स बाद सिरोसिस होगी, तो अल्कोहल बेटा 20 इयर्स जीने की गारंटी नहीं है. इन बिटवीन यू कैन डाई ड्यू टू अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, बिकॉज यहाँ पे क्या हो सकता है? फल्मिनेंट लिवर फेलियर हो सकता है. फल्मिनेंट लिवर फेलियर, राइट. पेशेंट को हो सकता है एंसेफेलोपैथी हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, राइट, एंड पेशेंट माइट डाई. वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट दिस कंडीशन. यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कोई सर्वाइव कर गया, ठीक है. तो फैटी लिवर हुआ,
माइल्ड हेपेटाइटिस हुआ, फाइब्रोसिस हुआ और इरिवर्सिबल स्टेज में आ गया सिरोसिस। एक बार सिरोसिस हो गया तो चीजें इरिवर्सिबल हैं, अब अल्कोहल अगर छोड़ भी देगा तो भी डिसीज प्रोग्रेशन माइट कंटिन्यू। ओके, सो दीज आर सीरीज ऑफ इवेंट्स। नॉर्मल हिस्टोलॉजी क्या है? ये सब आप लोग एनाटॉमी में पढ़ते हो। हिस्टोलॉजी में देयर इज सेंट्रल वेन, हेपेटिक वेन, राइट। यहां से आपके क्या हो जाते हैं, लिवर सेल्स कुछ इस तरीके से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं, और फिर आपके पास क्या हो जाते हैं, पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड, तीन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं यहाँ पे, तुम लोगों को पता होगा, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट एंड पोर्टल वेन। तो जो लोब्यूल का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, कॉर्ड ऑफ हेपेटोसाइट्स, राइट, रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रल वेन टू पोर्टल ट्रायड। ओके, लेकिन अगर आगे फाइब्रोसिस हो जाती है तो ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बीच बीच में नोड्यूल्स मिलेंगे। शुरू में क्या मिलेंगे, माइक्रो नोड्यूल्स एंड लेटर ऑन मैक्रो नोड्यूल्स। देखो, लिवर रिजनरेट करता है, लेकिन अगर डीजनरेशन, डैमेज का रेट रीजनरेशन से ज्यादा है, तो इंस्टेड ऑफ हिपेटोसाइट फॉर हिपेटोसाइट, स्टिलेट सेल के एक्टिव हो जाने से जो लिवर सेल इंजरी होगी उसके बजाय क्या आ जाएगा, फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा। इट विल लीड टू फाइब्रोसिस, राइट, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। और जब फाइब्रोसिस हो गई इसका मतलब अब सिरोसिस डेवलप हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट विल हैव माइक्रोनोडुलर सिरोसिस, देन मैक्रोनोडुलर सिरोसिस एंड देन decompensated cirrhosis in form of portal hypertension or acute on chronic liver failure, and then patient might also develop hepatocellular carcinoma. यहाँ पे पहला चेंज क्या आया, हम लोगों ने डिस्कस किया था, फैटी लिवर। फैटी लिवर में क्या होंगे, कुछ फैट ग्लोब्यूल्स आपको इस हिस्टोलॉजी में दिखेंगे, दीज आर फैट ग्लोब्यूल्स। अभी चीजें रिवर्सिबल है, राइट। इस समय अगर इनका अल्ट्रासाउंड कराओगे तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मिलेगा फैटी लिवर। ओके, आगे चलते पेशेंट माइट डेवलप अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, फैट ग्लोब्यूल्स तो दिखेंगे, इसके अलावा क्या होगा, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो कुछ ना कुछ डैमेज भी हो रहा होगा। क्या क्या डैमेजेस देख सकते हो, देयर कैन बी बैलूनिंग ऑफ हेपेटोसाइट्स, और क्योंकि यहाँ पे नेक्रोसिस हो रही है, सेल डेथ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन भी होगा, न्यूट्रोफिल्स भी आ जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है मैलोरी हाइलाइन बॉडीज, तो यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ, these are your Mallory hyaline bodies. What are these Mallory hyaline bodies? Mallory hyaline bodies, eosinophilic bodies, Mallory hyaline bodies। और यहाँ पे ढेर सारे आप लोग न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन भी देख रहे हो, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, राइट। दिस मार्क्स स्टेज ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, राइट। और क्या क्या चेंजेस होंगे, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी निकलेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज टीएनएफ अल्फा। और जो सीरीज ऑफ चेंजेस होंगे, वी नीड टू रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स, मैलरी बॉडीज, सराउंडिंग फाइब्रोसिस, व्हाट एल्स, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, बैलूनिंग ऑफ हेपेटोसाइट, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। बहुत देर से हम लोग थोड़ा सा सीरियस चीज पढ़ रहे हैं, अब आते हैं कुछ निमोनिक्स पे, राइट। निमोनिक्स पे कॉन्सेप्ट के अलावा हम लोग थोड़ा ईज डेवलप कर लेते हैं। किसी टॉपिक पे अगर बेटर निमोनिक है तो उसमें मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। मैलरी हाइलाइन बॉडीज आल्सो नोन एज मैलरी डेंट बॉडीज, राइट। सॉरी, केवल अल्कोहलिक लिवर डिसीज में नहीं मिलेगा, और भी डिसीजेस में मिलेंगे। तो कैसे याद करोगे, इसके लिए बहुत ही अच्छा सा निमोनिक है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जिसको तुम्हें मेमोराइज करना पड़ता है, निमोनिक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैलरी डेंट बॉडीज किन किन कंडीशन में मिलते हैं, राइट, उसके लिए निमोनिक है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं माल, और ये एज्यूम करते हैं कि कहीं से माल आया है। माल आया है बोलना ठीक है, कहीं से माल आई है, दिस इज वेरी इनएप्रोप्रिएट। तो इसका निमोनिक क्या है, माल आया है, राइट। तो माल में क्या आया है, अल्कोहल आया है या अल्कोहल नहीं आया है, समथिंग लाइक दिस, अल्कोहलिक थिंग और नॉन अल्कोहलिक थिंग। इसके अलावा हम लोग कहेंगे कॉपर है या कॉपर नहीं है, राइट। इसके अलावा दो मिनरल को और इंक्लूड कर लेते हैं, एक कैल्शियम और दूसरा आपका पीबी। पीबी का मतलब लेड होता है। यहाँ पे जैसे कहते हैं कुछ माल आया है, तो वैसे ही हम लोग याद कर लेते हैं माल। तो अल्कोहलिक्स, नॉन अल्कोहलिक्स, नॉन अल्कोहलिक्स में क्या होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो पहले यहाँ पे कॉजेस को एन्यूमरेट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट वन इज अल्कोहलिक लिवर डिसीज, राइट। देन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस।
विल्सन्स डिसीज, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, राइट, ये दोनों कैसे रिलेट हो रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन इट, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसको याद कैसे करना है, मेलोरी डेंक बॉडीज, और ऐसा याद करो कि केवल एक कॉन्सेप्ट से याद हो जाए, ऐसा ना हो कि तुम लोग याद कर लो और भूल जाओ किस चीज का निमोनिक था। ओके, सो हियर दिस इज वेरी सिंपल, एल्कोहल और नो एल्कोहल। एल्कोहल और नो एल्कोहल का क्या मतलब हुआ, एल्कोहलिक लिवर डिसीज में भी होगा और नॉन एल्कोहलिक लिवर डिसीज मतलब नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज में भी होगा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। व्हाट एल्स, कॉपर और नो कॉपर। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस आईसीसी बोलते हैं, अब काफी कम हो गया है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप की डिसीज थी और काफी बार ये फेटल होती थी, राइट, अब ये काफी कम हो गया है। पहले क्या होता था, लोग कुकिंग यूटेंसिल्स के तौर पे कॉपर बहुत यूज करते थे, तांबा बहुत यूज करते थे, राइट, तो कॉपर कंटेनिंग यूटेंसिल्स में अगर आप वाटर बॉईल कर रहे हो, फूड खा रहे हो, फूड प्रिपेयर कर रहे हो, देयर इज हाई चांसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग लॉट ऑफ कॉपर, राइट, सो दिस इज basically copper toxicity for liver. So you have copper toxicity by ICC and reverse of it is Wilson's disease. Wilson's disease में क्या हो गया, हम लोग कहते हैं सेलुलोप्लाज्मिन नहीं है तो ब्लड में कॉपर नहीं है, तो एक में कॉपर ब्लड में नहीं है, एक में कॉपर ज्यादा है, तो यू हैव फोर्थ है Wilson's disease, राइट। दो और बच गए, तो एक CF और कैल्शियम ले सकते हो, एक और मिनरल, दूसरा PB का मतलब लेड होता है, लेड, केमिस्ट्री में तुम लोगों को याद आ गया होगा। तो मेलोरी डेंक बॉडीज को मुझे तो ये बहुत इजी लगा याद करने के लिए, राइट, क्या है, माल आया है, माल में अल्कोहल आया है, अल्कोहल नहीं आया है, अल्कोहल आया है मतलब अल्कोहलिक लिवर डिसीज, नहीं अल्कोहल है तो हम लोग क्या कहेंगे, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज। उसके बाद कॉपर एंड नो कॉपर, जैसे अल्कोहल एंड नो अल्कोहल था, कॉपर ज्यादा है मतलब आईसीसी, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, और कॉपर नहीं है ब्लड में, सेलुलोप्लाज्मिन नहीं है, इसलिए यू say it as Wilson disease। इसके अलावा CA stands for cancer, hepatocellular carcinoma, and PB, these two letters, primary biliary cirrhosis। I think this is good enough knowledge। What else, जब सिरोसिस होगी तो पहले छोटे छोटे नोड्यूल्स बनेंगे, फाइब्रोटिक नोड्यूल्स, रीजनरेटिंग नोड्यूल्स, आगे चल के नोड्यूल का साइज और बड़ा हो सकता है, राइट। सो माइक्रो नोड्यूलर लेस देन 3 मिलीमीटर, मैक्रोनोड्यूलर ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर, राइट, ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर। तो माइक्रोनोड्यूलर एंड मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस किन कंडीशंस में मिलते हैं, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी कुछ निमोनिक हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि अगर अल्कोहलिक लिवर डिसीज है तो माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस भी हो सकता है, मैक्रोनोड्यूलर भी हो सकता है, ओके, इनिशियली इट विल बी माइक्रोनोड्यूलर। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कॉजेज ऑफ माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, कॉजेज ऑफ मैक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। तो अगर कभी भूल जाओ तुम लोग तो क्या याद रखना है, यहाँ पे माइक्रोनोड्यूलर याद कर लो, जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मैक्रोनोड्यूलर, ओके। सो दीज आर कॉजेज ऑफ मैक्रोनोड्यूलर। अगर मोटे मोटे तौर पे बात किया जाए मैक्रोनोड्यूलर कहाँ मिलेंगे, तो मैक्रोनोड्यूलर वायरल हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, इवन ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, बच जाते हैं आपके कॉजेज याद करने के लिए माइक्रोनोड्यूलर। तो ऐसा करते हैं, माइक्रोनोड्यूलर को एक निमोनिक से याद कर लेते हैं, राइट, और मैक्रोनोड्यूलर जो बच जाएंगे वो होंगे। तो माइक्रोनोड्यूलर के क्या क्या कॉजेज हैं तुम्हारे पास, यू हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस, यू हैव हीमोक्रोमेटोसिस, और अभी हम लोगों ने एक डिसीज डिस्कस किया इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर डिसीज दोनों में आ सकता है, बट इनिशियली इट इज माइक्रोनोड्यूलर। देन यू हैव बर्ट-चियारी सिंड्रोम एंड प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। तो कैसे याद करना है कॉजेज ऑफ माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, याद कर लो, माइक्रोचिप ऑलवेज बेस्ट। यहाँ पे अच्छी बात इस निमोनिक की क्या है, निमोनिक में क्वेश्चन भी है, निमोनिक में आंसर भी है, ओके। माइक्रो का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस, इंपॉर्टेंट है माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस। चिप के एक एक लेटर से एक एक डिसीज है, सी से क्या है, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एच से यू हैव हीमोक्रोमेटोसिस, and then you have I for Indian childhood cirrhosis, P for primary biliary cirrhosis। अब हमारे पास ऑलवेज बच गया है, बेस्ट बच गया है। ऑलवेज का मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं अल्कोहलिक लिवर डिसीज, एंड बेस्ट का मतलब बर्ट-चियारी सिंड्रोम, राइट। तो हम लोगों ने दो निमोनिक देख लिए हैं, एक हम लोगों ने देख लिया मेलोरी डेंक बॉडीज का जिसमें माल आया है, अल्कोहल, नॉन अल्कोहल,
कॉपर, नॉन कॉपर, कैल्शियम एंड लेड। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया है, वन मोनिमोनिक माइक्रोचिप आरनेस, सो CHIP। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑलवेज इज अल्कोहल, बेस्ट इज बट कैरी सिंड्रोम। जो बच गए, राइट, दे विल लीड टू मैक्रोनोडुलर सिरोसिस। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, राइट? हो सकता है एक अल्कोहलिक लिवर डिसीज का पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो, राइट, उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस सीवियर हुई ना हो, फैटी लिवर हुआ हो विदाउट एनी सिम्टम, आगे चल के इसको सिरोसिस जनरेट होने लगा हो, जब तक डिकम्पेंसेशन ना आया हो शायद तब तक उसको आइडिया ही ना हो, राइट? थोड़ा बहुत बिलिरुबिन हाई होगा, जब तक 3 से ज्यादा नहीं होगा तब तक क्लिनिकली एविडेंट नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे मोस्ट ऑफ देम स्टे एसिम्प्टोमेटिक, पीते रहते हैं, जीते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, फैटी लिवर होने की वजह से क्या होगा, कभी कभी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, और फटीग, टायर्डनेस, मलेरिया किसी भी लिवर डिसीज का बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो अगर मैं पहली यहाँ पे पहला सिम्टम लिखूंगा तो टायर्डनेस, राइट, फटीगेबिलिटी, समथिंग लाइक दैट। तो फैटी लिवर कोई सिम्टम नहीं, टायर्डनेस। अब ऐसे इंसान को अगर तुम पैल्पेट करोगे, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, यू कैन फाइंड हिपैटोमेगाली, लेकिन यहाँ पे हिपैटोमेगाली अभी टेंडर नहीं होगी, नॉन टेंडर। हम लोगों ने डिस्कस किया था इट कैन प्रोग्रेस इनटू, मान लो बिंज ड्रिंकिंग करने लगा इंसान, इट कैन प्रोग्रेस इनटू व्हाट, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा, राइट, तो यहाँ पे हिपैटोमेगाली होगा और टेंडरनेस भी प्रेजेंट हो जाएगा, राइट। इसके अलावा और क्या मिल सकता है, अभी हम लोग क्लिनिकल की बात कर रहे हैं, पेशेंट माइट डेवलप जॉन्डिस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी आल्सो एक्यूट लिवर फेलियर, you call it fulminant liver failure, okay, so there might be other features of related to bleeding, encephalopathy, etc. We will discuss all those points in acute hepatitis. Again, you all know that chronic intake can lead to cirrhosis. तो chronic liver disease के कुछ sign and symptoms होते हैं। chronic liver disease हो जाएगा, अब अल्कोहल को लेते लेते अब अल्कोहल लिवर को मेटाबोलाइज कर रहा था, इसके पहले लिवर अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर रहा था, तो क्या होगा, लिवर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, श्रिंक होने लगेगा और ज्यादा हार्ड हो जाएगा, नॉडुलर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कहते हैं हार्ड, श्रंकन, नॉडुलर लिवर। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लिवर का साइज और स्मॉल हो जाएगा। और हम लोग कहेंगे अगर क्रॉनिक लिवर डिसीज के तौर पे देखें तो ढेर सारे और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगे, जैसे एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा, टेरिनील्स मिल सकते हैं, ल्यूकोनाइकिया मिल सकता है, राइट, एडिमा वगैरह मिल सकता है, एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हो जाएंगे जिसकी वजह से कुछ और मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे, प्राइमरली सेक्सुअल डिस्टर्बेंसेस इन मेल, जैसे गायनेकोमेस्टिया हो गया, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गया, लॉस ऑफ लिबिडो। तो कुछ चीजें हम लोग क्रॉनिक लिवर डिसीज में कवर कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि अल्कोहल ले रहे हो तो केवल वो लिवर के पीछे पड़ा हुआ है, राइट। अल्कोहल बहुत टाइम तक लोगे, इट कैन एक्ट एज सीएनएस डिप्रेशन, राइट। तो जो बहुत ज्यादा चिल किए होते हैं अगर वो सुधरते नहीं है तो लास्ट में जाके डिप्रेस भी हो जाते हैं, राइट। और इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, अगर मान लो किसी कोई अल्कोहलिक नहीं है या अल्कोहलिक है भी, अल्कोहलिक लिवर डिसीज नहीं है, मैं इतना उसको सेफ मान रहा हूँ, मान लो उसने पार्टी किया ओवरनाइट, राइट, और बहुत ज्यादा उसने बिंज ड्रिंकिंग कर ली ओवरनाइट, अगले दिन ही कैन सफर फ्रॉम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, राइट। तुम लोगों को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के कॉजेस बताऊंगी, आगे चल के हम लोग डिस्कस भी करेंगे, बट नॉट इन दिस लेक्चर। इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, कैसे कंफर्म करोगे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है या अल्कोहलिक लिवर डिसीज है। हो सकता है पेशेंट ना बताए तुम, जैसे मैं नहीं बताऊंगा कि मैं पीता हूं कि नहीं पीता हूं, अगर मैं बताऊंगा मैं पीता हूं, मैं कह दूंगा आई विल ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं, तो पहला इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स लिवर फंक्शन टेस्ट, यू विल लाइक टू लुक फॉर बिलिरुबिन। ऑफ कोर्स अगर लिवर डिसीज है तो बिलिरुबिन कैन गो हाई, हो सकता है क्लिनिकल हो सकता है सब क्लिनिकल हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे हमारे पास लिवर एंजाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लो मैंने कह दिया कोई पेशेंट है, उसने कहा उसने कभी दारू छुई भी नहीं, राइट। एक बार हम लोग वार्ड में हिस्ट्री ले रहे थे, मैंने पूछा तो पेशेंट बोला कि छोड़ दिया है। जब ज्यादा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे पहुंचे पता लगा परसों ही छोड़ा था। तो बहुत सारे अजीबोगरीब पेशेंट्स मिलेंगे आपको, हो सकता है वो ना बताएं कि वो पीते हैं कि नहीं, तो अगर पीते नहीं है तो भी अल्कोहलिक लिवर डिसीज नहीं है, नहीं बता रहे तो भी उनको लेबल नहीं कर सकते अल्कोहलिक लिवर डिसीज। तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिक है, काफी सारे मार्कर्स हैं, लेकिन अगर मान लो मैं उसका एलएफटी डिरेंज है, इट विल मेक योर लाइफ वेरी वेरी इजी। तो लिवर एंजाइम्स क्या होते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी, हम लोग क्या कह देते हैं, दिस इज एएलटी, दिस इज एएसटी। यूजुअली एसजीपीटी इज मोर स्पेसिफिक फॉर लिवर डिसीजेस, राइट, और ये ज्यादा इंक्रीज भी हो जाता है, राइट, एज कंपेयर टू एसजीओटी। लेवल ऑफ एसजीपीटी इज ऑलवेज हायर, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे,
SGPT से ज्यादा क्या होगा, SGOT होगा, SGPT से ज्यादा, और कभी कभी SGOT डिवाइडेड बाय SGPT, जो ये रेशियो होगा ये ग्रेटर देन 2 होगा, और इट कैन बी इवन मोर देन 2, दिस इज ऑलमोस्ट डायग्नोस्टिक। और अगर SGOT और SGPT का रेशियो 3 से ज्यादा है तो ये लगभग डेफिनेटिव है कि जो पेशेंट आपके सामने है ही इज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिक लिवर डिसीज। ओके, अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे SGOT ज्यादा है और SGPT कम है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ SGPT नॉर्मल से कम है, राइट? अगर इनके रेंज को देखा जाए यहाँ पे, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस की लेवल बहुत ज्यादा हो जाए। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि लेस देन 50 होते हैं, यहाँ पे मैं कहूंगा इनका लेवल होगा 300 to 500 यूनिट्स। ओके, SGOT क्यों ज्यादा हो गया, रिवर्सल क्यों हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इन एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए तुम्हें चाहिए होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, विटामिन फॉस्फेट, और जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें इनका लेवल कम हो जाता है। दोनों के फॉर्मेशन में पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट लगता है, लेकिन किसके फॉर्मेशन में लार्जर अमाउंट लगता है, SGPT नीड्स लार्जर अमाउंट ऑफ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। तो अगर पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की कमी है तो SGPT बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो एलिवेट कहां से होगा? तो यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें SGOT SGPT से ज्यादा होगा, दैट इज मोर ऑफ AST एज कंपेयर टू ALT। इसके अलावा यू कैन आल्सो सेंड योर पेशेंट फॉर अल्ट्रासाउंड और देख सकते हो लिवर का स्पैन क्या है, इको टेक्सचर क्या है। अगर एक्यूट लिवर डिसीज है तो क्या होगा, लिवर स्पैन बढ़ा हुआ होगा, और अगर क्रॉनिक लिवर डिसीज है, सिरोसिस की तरफ जा रहा है, तो लिवर स्पैन कम हो जाएगा, नॉडुलर हो जाएगा, इको टेक्सचर उसका गड़बड़ हो जाएगा। पहले क्या होता था, अगर कंफर्म करनी है डायग्नोसिस तो यू नीडेड अ बायोप्सी, लिवर बायोप्सी, लेकिन इन्वेजिव भी है, ज्यादा टेक्निकल भी है, पेशेंट के लिए पेनफुल भी है। Nowadays you have the investigation by the name of transient elastography, right? CR waves हम लोग देख लेते हैं, लिवर का इको टेक्सचर क्या है, अंदर नोड्यूल्स हैं कि नहीं, तो इट इज पॉपुलरली नोन एज फाइब्रोस्कैन। ओके, कुछ और चीजें जैसे मान लो पहले कहा जाता था GGT इज द बेस्ट मार्कर, तो GGT गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज बेस्ट मार्कर अल्कोहलिक लिवर डिसीज का नहीं है। मान लो मुझे अल्कोहलिक लिवर डिसीज है, हो सकता है GGT नॉर्मल हो, अगर कोई अल्कोहल इंटेक ले रहा है, कोई एकदम नशेड़ी गजेड़ी टाइप का इंसान है, रोज पी लेता है या किसी पर्टिकुलर दिन ज्यादा पी लिया तो GGT बढ़ जाएगा। तो GGT इज मार्कर ऑफ अल्कोहलिज्म, राइट? अब यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे देख रहा है, इंक्रीज MCV, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अल्कोहलिक्स में MCV ज्यादा होता है, खासकर क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैक्रोसिटिक अनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट B12 एंड folic acid deficiency, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रोसिटिक अनीमिया, मैक्रोसाइटोसिस ऑफ हार्ट डिसीज। तो जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन न्यूक्लियर मैच्योरेशन से अहेड होता है, मेम्ब्रेन बन जाती है और मेम्ब्रेन एक्सपैंड भी कर जाती है। तो अगर ये नॉर्मल आपके 80 to 100 फेम्टोलीटर के आरबीसी है, अल्कोहलिक्स में इट विल बी मोर देन 100 फेम्टोलीटर, इट मींस क्या है, मैक्रोसाइटोसिस है, और अगर अनीमिया भी है यू विल कॉल इट मैक्रोसिटिक अनीमिया। सबसे अच्छा मार्कर अल्कोहल इंटेक का इट इज कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट ट्रांसफेरेंट। ओके, सीरम में करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक अप्रोच लेके चलता हूँ, मान लो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ अल्कोहलिक लिवर डिसीज, अल्कोहलिक लिवर डिसीज क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स वगैरह हो गए, नाउ यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, गो फॉर LFT, लुक फॉर सीरम बिलिरुबिन, लुक फॉर SGPT एंड SGOT, कौन सा ज्यादा होगा? मैंने यहाँ पे कर दिया SGOT ग्रेटर देन SGPT। अगर एक यहाँ पे डेफिनेटिव डायग्नोसिस मान लो बनानी है तो मैं कह दूंगा AST डिवाइडेड बाय ALT ग्रेटर देन 3। ओके, ये एक तरीके से डेफिनेट है। इसके अलावा हम लोग क्या कैसे अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, आगे चल के फाइब्रोसिस वगैरह देखने के लिए यू कैन गो फॉर फाइब्रो स्कैन, इससे पता चल जाएगा सिरोसिस है कि नहीं। अगर मान लो मैं कहता हूँ सिरोसिस है तो यू नीड टू आल्सो लुक फॉर डीकंपेंसेटेड सिरोसिस। डीकंपेंसेटेड सिरोसिस के लिए क्या और करना पड़ेगा, राइट? तुम्हें कलर डॉपलर वगैरह कराना पड़ेगा, PT-INR देखना पड़ेगा कोगुलोपैथी के लिए, राइट? और क्या देखना पड़ेगा, एसाइटिस वगैरह देख सकते हो, एसाइटिस, राइट, फॉर पोर्टल हाइपरटेंशन, PHTN।
तो आगे चल के हम लोग कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, वो हम लोग CLD और एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर में देखेंगे। अमोनिया लेवल भी ज्यादा हो सकता है, तो अगर एक बार लिवर फेलियर में चला गया वो एक्यूट ऑन क्रॉनिक या पोर्टल हाइपरटेंशन में चला गया, तो उसके रिलेटेड भी हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, LFT, अल्ट्रासाउंड, राइट, फाइब्रोस्कैन। अब यहाँ पे ये कैसे बताएंगे कि कोई लिवर डिसीज का पेशेंट है, मान लो मैंने एल्कोहलिक हेपेटाइटिस वाली स्टेज पे है या अर्ली स्टेजेस ऑफ सिरोसिस, तो क्या प्रोग्नोसिस है? इसके लिए हमारे पास ढेर सारे स्कोर्स हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैड्रिड डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन और स्कोर। हम लोग कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सीवियरिटी इसी स्कोरिंग से बता सकते हो, तो इसलिए इसको हम लोग एल्कोहलिक लिवर डिसीज में यूटिलाइज करते हैं। 3 कंपोनेंट्स है, इवन फार्मूला भी तुम लोगों को शायद याद हो, राइट? व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स? सीरम बिलिरुबिन, पेशेंट्स प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड कंट्रोल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर 4.6 इनटू प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ पेशेंट। जाहिर सी बात है, अगर लिवर डिसीज जितना ज्यादा सीवियर होगा उतना ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ने के चांसेस है, माइनस कंट्रोल। कितना होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम? 10 to 15 सेकंड। मान लो किसी पेशेंट का 40 सेकंड हो रखा है, तो 40 minus 15 into 4.6 plus serum bilirubin। If this score comes out to be more than 32, तो इसका मतलब सीवियरिटी ऑफ डिसीज काफी ज्यादा है। और इसका दूसरा रेलेवेंस ये होगा कि यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, जिससे हम लोग डिसीज के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकें। कौन कौन सी ड्रग्स होती है जिनको हम लोग एल्कोहलिक लिवर डिसीज में यूज कर सकते हैं टू डिले द फाइब्रोसिस, टू डिले द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज? ड्रग ऑफ चॉइस इज स्टेरॉइड एंड दैट इज प्रेडनिसोलोन। अभी डिस्कस करेंगे। अगर प्रेडनिसोलोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यू कैन गिव पेंटॉक्सिफिलिन। तो यहाँ पे और भी हमारे पास स्कोरिंग होते हैं, एक मेल स्कोरिंग होता है, राइट? तो हम लोग सबको देख लेते हैं। दिस इज योर मैट्रिक्स डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन स्कोर, मोर और इक्वल टू 32। देन यू हैव मेल स्कोर, पॉपुलरली नोन एज मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिसीज। अगर ये 18 से ज्यादा है, इसका मतलब डिसीज सीवियरिटी ज्यादा है, प्रोग्नोसिस पुअर है, यू नीड टू स्टार्ट ड्रग्स। और अगर ग्लासगो एल्कोहल हेपेटाइटिस स्कोर greater or equal to 9 है, again these are indicators of poor prognosis. These will help you to start drugs, right, for treatment of alcoholic hepatitis. Again यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिपीट किया है, ये इसका फॉर्मूला है। We are discussing मैट्रिक्स डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन ऑफ और स्कोर कितना होगा? greater than 32, poor prognosis। यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स आपके ग्लासगो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्कोर, इनमें अगर हम लोग कहेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 9 है, अगेन पुअर प्रोग्नोसिस। बहुत सारे स्कोरिंग्स होते हैं, जैसे मान लो जब हम लोग विल्सन्स डिसीज पढ़ेंगे तो वी विल लुक फॉर नेजर्स इंडेक्स, लेकिन वहां पे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मान लो चाइल्ड बग स्कोरिंग कर रहे हो, मोर ऑफन यूज फॉर लिवर ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया। यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं एल्कोहलिक लिवर डिसीज में। कभी मान लो भूल जाते हो मैट्रिक्स किसमें था, एल्कोहल पीने के बाद ज्यादातर लोग मैट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा स्कोर यूज करेंगे? मैट्रिक्स। कितने से ज्यादा हो जाए? ग्रेटर और इक्वल टू 32। दिस इंडिकेट्स पुअर प्रोग्नोसिस, राइट? यू कैन टेक दिस पेशेंट ऑन ड्रग्स। तो एक बार फिर से इसको अगेन रिवाइज कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर ग्रेटर और इक्वल टू 32, व्हाट एल्स? मेल स्कोर ग्रेटर और इक्वल टू 18, राइट? एंड ग्लासगो एल्कोहल हेपेटाइटिस स्कोर ग्रेटर और इक्वल टू 9। These indicate increased high disease severity along with poor prognosis. अब अगर ये अल्कोहल छोड़ भी देंगे तो भी रिवर्सल नहीं होने वाला है, ठीक है? तो हम लोग इसके प्रोग्रेशन को स्लो करना चाहेंगे और डिस्कस करेंगे। अगेन लो रिस्क एंड हाई रिस्क, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, ओके? हाई रिस्क में मेल स्कोर एंड यू नीड टू सी दिस मैट्रिक्स स्कोर ग्रेटर देन 32, मेल ग्रेटर देन 18। ओके, आगे चल के फाइब्रोस्कैन भी करा सकते हो, बायोप्सी भी करा सकते हो, बट बिकॉज बायोप्सी इज इन्वेसिव यू नीड टू गो फॉर फाइब्रोस्कैन। प्रेडनिसोलोन एंड पेंटॉक्सिफिलिन, दीज आर द 2 कॉमनली यूज्ड ड्रग्स। अगर मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसमें प्रेडनिसोलोन नहीं दे सकते, जैसे रीनल फेलियर हो गया, बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, ब्लीड हो गया पेशेंट को, यू कैन गो फॉर पेंटॉक्सिफिलिन। वैसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज की ड्रग है। ट्रीटमेंट, पहली चीज जो बोलना होगा पेशेंट को कि एल्कोहल अब नहीं पीना है, राइट? थोड़ी भी नहीं, बिल्कुल नहीं पीनी है। देन यू हैव प्रेडनिसोलोन एंड देन यू हैव पेंटॉक्सिफिलिन। प्रेडनिसोलोन यूजुअली स्टार्ट करते हैं 30 to 40 मिलीग्राम पर डे, और उसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आई मीन 4 वीक्स में उसको क्या कर देंगे हम लोग? टेपर करके बंद कर देंगे। जब भी लॉन्ग टाइम प्रेडनिसोलोन देते हैं स्टेरॉइड तो टेपर करते हैं।
यहाँ पे पेंटॉक्सिफिलिन है, अगर प्रेडनिसोलोन नहीं दे सकते जो भी आज की क्राइटेरिया कहते हैं तो पेंटॉक्सिफिलिन यूज कर सकते हैं। पेंटॉक्सिफिलिन करेगा क्या, दिस विल इनहिबिट टीएनएफ अल्फा, और टीएनएफ अल्फा ही आपके क्या करते थे, स्टिलेट सेल्स को एक्टिवेट करते थे और इसकी वजह से क्या होता था, फाइब्रोसिस। तो तुम्हारा मेन एम क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज को स्लो करना। दिस इज योर पेंटॉक्सिफिलिन, दिस इज योर प्रेडनिसोलोन। तो काफी लंबा लेक्चर हो गया, अब कुछ एमसीक्यूज ले लेते हैं और तुम लोग कमेंट सेक्शन में, पहला एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ, सेकंड एमसीक्यू तुम लोग जानते होंगे, यू गाइस शुड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हाट व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जीजीटी एल्कोहलिज्म का मार्कर है तो इंक्रीज होगा। एसजीओटी हम लोगों ने देखा है, रेशियो आपका क्या होगा, 3 टाइम्स इंक्रीज होगा SGO2। ALP लिवर डिसीज है, इट कैन इंक्रीज, राइट, ये सही नहीं है। यही ऐसे डिसीज है जिसमें SGPT इज लेस एज कंपेयर टू SGOT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था अगर SGOT ट्वाइस ज्यादा है किससे, SGPT से, इसका मतलब ये लिवर डिसीज अल्कोहल की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर थ्राइस ज्यादा है, अगर 3x है AST as compared to LT, it is definitely going to be chronic liver disease, okay, due to alcohol। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर। Which of the following enzyme assay is useful for diagnosing alcoholism? SGOT, SGPT, ALP and GGT। कई बार इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। I think this is more than enough for today, right? अगर मेरी एडवाइस लेना हो रिगार्डिंग एल्कोहल, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, राइट, तो आई विल से